Once again, a very good morning in Jai Hind class 11th. Continuing with chapter number 2nd, let me recall you that we were on the topic formation of a company, and we were discussing the stages, the different stages while formation of a company, right? The first stage we are done, that is promotion stage, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं बिजनेस आइडिया, द फीजिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग, प्लानिंग फॉर रिसोर्सेज लाइक कैपिटल, मशीनरी, मटीरियल्स, लोकेटिंग फाउंडर, मेंबर एंड डायरेक्टर्स, ठीक है, उनके सिग्नेचर लेते हैं, अरेंजमेंट विद बैंकर्स एंड ब्रोकर्स. सेकेंड स्टेज दैट इज़ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन स्टेज. यहाँ पर आप रजिस्टर कराते हो अपनी कंपनी को, नेम ऑफ द कंपनी, प्रिपरेशन एंड फिलिंग ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम एंड आर्टिकल में हमने पढ़ा था, इसमें एवरीथिंग इज़ टू बी मेंशन. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ starting a business, right? About the company, name, address, everything. Filling of list of directors, then pay the registrar fees, and then the company can get the certificate of incorporation. Okay. Now comes the third stage, that is capital subscription stage. यहाँ पर we are going to raise money from the public. और भी बहुत कुछ करते हैं. आई एम जस्ट टेलिंग यू इन शॉर्ट, इट्स जस्ट हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, वी गॉट द सर्टिफिकेट फ्रॉम द रजिस्ट्रार, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, राइट. नाउ द थर्ड स्टेज इज कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज. लेट्स डिस्कस इट. बेटा लेट मी टेल यू दैट कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में इट हैज़ टू बी added that how much money, how much finance, right, has to be added in business. Like after obtaining, once you obtain the certificate of incorporation, the promoters, those who have the business idea, and the directors who are related with him, who are the partners, you can say, ठीक है, that panel of experts proceed to ensure the flotation of company. They have to see that company must go on. Flotation of company means it to get it going. For this purpose, it is not necessary कि they must have sufficient finance, you can say, sufficient capital. ठीक है, उसके लिए they have to raise that particular capital from the public. Okay, for this purpose they take the help of public to raise the capital and to obtain the last stage, that is certificate to commence business. आप समझ रहे हो उस चीज़ को. आपके पास इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट आ गया, यू गॉट दी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी सर्टिफिकेट टू कॉमेंस बिजनेस, कि अब आप स्टार्ट कर सकते हो बिजनेस. इट्स जस्ट वंस यू रेज दी कैपिटल, जो आपके कंपनी को जिसकी रिक्वायरमेंट है, नीड है, उतनी कैपिटल आपने रेज कर ली और आपका काम शुरू हो गया, फ्लोटेशन में आ गए हो आप. सो दैट मीन्स देन ओनली यू कैन गेट दी सर्टिफिकेट ऑफ कॉमेंस बिजनेस. अब उसके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज, लेट्स सपोज इफ आई हैव अ प्लान, आई गॉट माई सेल्फ इनकॉर्पोरेटेड एंड आई आस्क्ड यू टू take out your money, and I'm raising the capital from you, so that is a typical task. अब मैं आप में से 10 बच्चों को कन्विंस करूँगी कि बेटा मैं एम गोइंग टू स्टार्ट दिस बिजनेस, जो प्रॉफिट होगा आई शेयर इट विद यू, आप अपना पैसा लगाओ. तो किसी के लिए भी पैसा निकालना इज अ टिपिकल टास्क, राइट. सो द फॉलोइंग स्टेप्स विच हैज़ टू बी टेकन टू रेज द कैपिटल फॉर अ न्यू कंपनी इज, the very first one is SEBI approval. SEBI full form is the Securities and Exchange Board of India, that is SEBI, जिसे आप कैपिटल मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी कहते हो. once again underline this, capital market regulatory authority in India. SEBI has issued some guideline for the disclosure of information and investor protection. The people who are going to invest in your company, for their sake of protection, and it is very important for the company to disclose all the related information, right. Company inviting fund from general public, the company, any company which is inviting funds from the general public must make adequate disclosure of all relevant information. आपको सारी information देनी होगी public को. You need not to reveal anything. Must not conceal any material information from the potential investor.
ठीक है, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं उनसे तो किसी भी रिलेटेड मटेरियल से भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको छुपानी नहीं है, सॉरी, ओके। एंड दिस इज़ नेसेसरी फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। देखो, आप किसी कंपनी में पैसा अपना लगाने जा रहे हो, ठीक है, द कंपनी इज़ रेजिंग फंड फ्रॉम यू, तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। जब आपका पैसा उस कंपनी में लग रहा है तो यू मस्ट बी नोन विद ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन। एंड इफ़ यू आर द पोटेंशियल इन्वेस्टर जो सबसे ज़्यादा पैसा लगा रहा है, तो आपका हक बनता है कि आप ऑल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से एक्वेंटेड हो। सो प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी इज़ रिक्वायर्ड बिफोर गोइंग अहेड विद रेजिंग फंड फ्रॉम जनरल पब्लिक। पहले सेबी से परमिशन लेनी होती है दैट वी आर गोइंग टू रेज सच एंड सच फंड फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड वी आर गोइंग टू रिवील ऑल सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टू द जनरल पब्लिक, राइट। नेक्स्ट कम्स फिलिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस। अब फंड रेज करने की परमिशन सेबी से मिल गई है, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से वी गॉट द परमिशन टू रेज फंड फ्रॉम द जनरल पब्लिक। नाउ द सेकंड स्टेप कम्स इन प्रॉस्पेक्टस। हाउ कम यू गेट टू नो कि अ न्यू कंपनी हैज फॉर्म्ड एंड द कंपनी इज लुकिंग फॉर रेजिंग द फंड? कैसे पता चलेगा आपको? सो इन ऑर्डर टू रेज फंड फ्रॉम द पब्लिक एक प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाता है, या जिसे आप कहते हो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। इट इज़ टू बी फिल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। द स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस उसे अप्रूव किया जाता है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन इट्स मीटिंग, ठीक है। जो भी जितने भी हायर लेवल अथॉरिटी पीपल होते हैं, दे अप्रूव्ड दैट पर्टिकुलर प्रॉस्पेक्टस फर्स्ट। द बोर्ड में डिसाइड टू गेट द इशू ऑफ शेयर कैपिटल अंडर रिटन टू ensure दैट मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रेज्ड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि कितना हमें शेयर इशू करने हैं, ठीक है, शेयर इशू करने के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कैसे करनी है, कितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन रेज कराना है हमें पब्लिक से। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो डिसाइड करते हैं और फिर वो दे अप्रूव इट। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन इट्स मीटिंग अप्रूव द ड्राफ्ट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर एंड अंडर राइटर्स। देखो, पब्लिक से फंड रेज करना बहुत टिपिकल होता है। कोई नई कंपनी है स्पेशली, उसके लिए तो बिल्कुल कोई भी अपना पैसा नहीं लगाना चाहेगा किसी नई कंपनी में। सो इस प्रोसेस को इजी बनाने के लिए एक्सपर्ट्स की अपॉइंट किए जाते हैं, जैसे बैंकर्स को अपॉइंट किया जाता है सो दैट दे कैन रिसीव एंड डिपॉजिट द एप्लीकेशन मनी, ठीक है। हम ज़्यादातर बैंक को अप्रोच करते हैं, कोई नया स्कीम आ रहा है, कोई नई कंपनी फंड रेज करना चाहती है, ठीक है। बैंक्स पर हमें पूरा विश्वास होता है, ट्रस्ट वर्दी होते हैं। नेक्स्ट आप ब्रोकर्स, जिन्हें दलाल भी बोलते हैं, दे आर अपॉइंटेड टू डिस्ट्रीब्यूट द शेयर एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड एनकरेज द पब्लिक टू सब्सक्राइब द शेयर। उन्हें अपॉइंट किया जाता है स्पेशली ब्रोकर्स को कि वो डिस्ट्रीब्यूट करें एप्लीकेशन दैट प्रॉस्पेक्टस फॉर्म्स, और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को एनकरेज करें सो दैट दे कैन सब्सक्राइब देयर शेयर्स, कंपनी के शेयर्स खरीद सकें। नेक्स्ट आर अंडर राइटर्स अपॉइंट किए जाते हैं। इफ़ द कंपनी इज़ नॉट श्योर, अगर कंपनी नहीं कर पा रही है, फंड रेज नहीं कर पा रही है, तो अंडर राइटर्स की हेल्प ली जाती है। दे अंडरटेक टू बाय द शेयर इफ़ दे आर नॉट सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। अगर पब्लिक ने शेयर्स नहीं खरीदे हैं सो दी अंडर राइटर्स अंडरटेक टू बाय द शेयर्स, उसके बदले में उन्हें कमीशन मिलती है, राइट। If the company is not sure of receiving the minimum subscription of share by the public, so underwriters undertake करते हैं to buy the share, ओके। अगर पब्लिक नहीं ले रही है तो उसके बदले में उनको कमीशन मिलती है। नेक्स्ट इज़ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। सी, एप्लीकेशन फॉर्म्स जो होते हैं, आपने पढ़ा ना, एप्लीकेशन फॉर्म्स अलॉट किए जाते हैं शेयर्स के लिए अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन मनी, ठीक है। They have been received by the bankers of the company mentioned in the prospectus, right? Bankers ने receive किया, but before the allotment of share, it must be ensured that the minimum subscription as mentioned in the prospectus has been received in cash by the public subscription. मिनिमम सब्सक्रिप्शन का होना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले आप अलॉट करें शेयर्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि हमने पब्लिक से इतना पैसा उठा लिया है जितना हमें वी वर एक्सपेक्टिंग। एंड इफ़ द कंपनी फेल टू रेज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन लाइक 90% ऑफ द अमाउंट, अगर सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कंपनी फेल हो जाती है टू रेज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन 30 days, जब उन्हें प्रॉस्पेक्टस इशू किया है, सो सारी मनी जो पब्लिक का है से रिसीव किया है वो उन्हें रिफ़ंड करना पड़ेगा अगले 10 दिनों के अंदर अंदर,
राइट बेटा, अगर कंपनी नहीं इशू कर पाती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जो कि फॉर्म में मेंशन होता है, गाइडलाइन होती है सेबी की, सो कंपनी को 30 दिन तक अगर नहीं कर पाती है 90% अमाउंट रेज, दे हैव टू रिफंड द मनी ऑफ द पब्लिक विद इन द नेक्स्ट 10 days. ठीक है, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी न्यू कंपनी और एनी कंपनी. नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन शेयर्स. इनके बारे में हमने पीछे भी पढ़ा था. डायरेक्टर्स बाय करते हैं क्वालिफिकेशन शेयर्स. इट इज़ कंपल्सरी फॉर द डायरेक्टर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी दैट दे मस्ट टेक क्वालिफिकेशन शेयर. क्वालिफिकेशन शेयर्स डायरेक्टर्स को खरीदने होते हैं और उन्हें उनकी पेमेंट भी करनी होती है. दो दे आर द डायरेक्टर्स, बट उनके लिए कंपल्सरी है कि उन्हें क्वालिफिकेशन शेयर्स लेने हैं. इट मीन्स दैट ईच प्रपोज डायरेक्टर मस्ट बी अ शेयर होल्डर फर्स्ट इन ऑर्डर टू बिकम अ डायरेक्टर. इसका मतलब डायरेक्टर तो वो बाद में बनेंगे, पहले उन्होंने अब कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो वो पहले शेयर होल्डर बनेंगे. कौन से शेयर? क्वालिफिकेशन शेयर, विच आर फॉर दी यू कैन से सुपीरियर लेवल, राइट. द कंपनी मस्ट मेक अ declaration that the director have paid in cash for the qualification share allotted to each of them. कंपनी ये डिक्लेयर करती है कि डायरेक्टर्स को कैश देना है इन किसके बदले में? क्वालिफिकेशन शेयर्स जो उन्हें अलॉट किए जा रहे हैं. दे हैव टू पे कैश फॉर द सेम, राइट. सो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें? द वेरी फर्स्ट पॉइंट वॉज वी नीड टू टेक अप्रूवल फ्रॉम सेबी. प्रॉस्पेक्टस को फाइल करना. अगर हम जनरल पब्लिक से पैसा नहीं कलेक्ट कर पाते हैं, फंड नहीं रेज कर पा रहे हैं, तो वी विल अपॉइंट द बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स. ठीक है, बैंकर्स रिसीव और डिपॉजिट करते हैं, ब्रोकर्स एनकरेज करते हैं पब्लिक को. ठीक है, अंडरराइटर्स दे एक्ट एज एन एजेंट. ओके, दे रिसीव कमीशन फॉर द सेम. मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना बहुत ज़रूरी है. अगर हम उतना फंड रेज नहीं कर पाते हैं, विल हैव टू रिफंड द अमाउंट ऑफ पब्लिक विद इन द नेक्स्ट 10 days. कौन से नेक्स्ट 10 days? 30 days के बाद वाले 10 दिन. क्वालिफिकेशन शेयर, डायरेक्टर्स को जो हाई अथॉरिटी होती है उन्हें क्वालिफिकेशन शेयर कंपनी के खरीदने होते हैं. डायरेक्टर बनने से पहले दे हैव टू बिकम दी शेयर होल्डर. नेक्स्ट इज एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज. कंपनी मस्ट मेक एन एप्लीकेशन एटलीस्ट इन वन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. देयर आर नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस. कंपनी को एक एप्लीकेशन डालनी होती है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में. किसकी परमिशन लेने के लिए? कि वो शेयर्स के साथ डील कर रहे हैं. If company is not taking permission, getting permission within 10 weeks from the date of closure of subscription list, जो उन्होंने सब्सक्राइब करा लिए हैं पैसे उसकी क्लोजर के, कि भाई आप तब तक पैसा फंड रेज कर सकते हो, उसके विद इन 10 weeks तक अगर परमिशन नहीं लेती हैं स्टॉक एक्सचेंज की, then the allotment will become void and all money received from the applicants will have to be returned within 80 days. स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू एक मीडियम है बेटा स्टॉक एक्सचेंज, जिसके थ्रू हम शेयर एक्सचेंज करते हैं, परचेज एंड सेल करते हैं सेल शेयर की. आपको नहीं पता कौन सी नई कंपनी फॉर्म हुई है, यू आर नॉट अवेयर कंपनी ने कितने शेयर किस प्राइस पर निकाले हैं. इट इज़ आपको स्टॉक एक्सचेंज की नॉलेज है. आप यू कैन अप्रोच द स्टॉक एक्सचेंज वे यू कैन ईजिली बाय और सेल दी शेयर्स, राइट. तो कोई भी कंपनी होगी, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट कंपनी दैट दे मस्ट मेक एन एप्लीकेशन एटलीस्ट वन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज कि दैट वी आर गोइंग टू डील विद दी शेयर्स. अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो अलॉटमेंट वॉइड हो जाएगा और सारी पैसा एप्लीकेंट्स का वापस करना होगा विद इन 18 days. नेक्स्ट इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. द पब्लिक कंपनी हैव रिसीव्ड द मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद प्रोसीड विद अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू द एप्लीकेंट्स. कोई भी पब्लिक कंपनी जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन उनका हो जाता है, 90% उन्होंने रेज कर लिया है फंड, वो प्रोसीड कर सकते हैं शेयर्स के साथ. उन्हें अलॉटमेंट लेटर्स इशू कर दिए जाते हैं एप्लीकेंट्स को. ज़्यादा मनी अगर आ जाती है इज़ रिटर्न टू दी एप्लीकेंट्स, या एडजस्ट कर दिया जाता है उसको अलॉटमेंट मनी ड्यू फ्रॉम देम. इट इज़ रिक्वायर्ड टू सबमिट अ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कंटेनिंग द नेम एंड एड्रेस ऑफ शेयर होल्डर एंड नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू ईच. अब कंपनी का काम है कि वो सबमिट करे एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट रजिस्ट्रार के पास कि किस किस ने कितने नंबर ऑफ शेयर खरीदे हैं, कौन कौन शेयर होल्डर्स हैं, उनका एड्रेस क्या है. भाई आपकी कंपनी के शेयर जिसने खरीदे हैं उन शेयर होल्डर्स के नाम, उनका एड्रेस, उनका नंबर ऑफ शेयर्स जो उन्हें अलॉट किए गए हैं, ठीक है, उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है. सो दिस इज़ द स्टेज
which you can say capital subscription stage is done here. Prospectus issue, receipt of minimum subscription, and then allotment of shares. Now comes the last stage, commencement of business stage. कोई पब्लिक कंपनी तब स्टार्ट कर सकती है when the public company got the commencement of business stage, but private company just after the second stage, when they got the incorporation certificate, they can commence the business, right? So next come the last one is commencement of business stage. A public company have a share capital will have to file the following document with the registrar. कोई भी पब्लिक कंपनी जिसने बाकी की 3 स्टेजेस फुलफ़िल कर ली हैं, ठीक है, जिसके पास शेयर कैपिटल है, अब उन्हें अपनी फ़ाइल पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना है ताकि वो सिक्योर कर सकें सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. क्या क्या चीज़ें चाहिए? डिक्लेरेशन दैट शेयर पेएबल इन कैश हैव बीन अलॉटेड एटलीस्ट अप टू द अमाउंट ऑफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन. जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए उससे रिलेटेड डिक्लेरेशन की जाए दैट द शेयर्स पेएबल इन कैश हैव बीन अलॉटेड. ठीक है, जिन लोगों ने शेयर्स कैश में ख़रीदे हैं उन लोगों को वो अलॉट कर दिए गए हैं. डिक्लेरेशन दैट एवरी डायरेक्टर हैज़ पेड इन कैश इन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी. जो डायरेक्टर्स हैं वो क्वालिफिकेशन शेयर परचेज़ कर चुके हैं और पे कर चुके हैं कैश में. कोई भी मनी पेंडिंग नहीं है टू पे बैक टू दी एप्लीकेंट्स को पैसा देना है या नहीं, जो भी है, कोई भी मनी पेंडिंग नहीं है, राइट. एक स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन किया जाएगा बाय द सेक्रेटरी या किसी एक डायरेक्टर से कि सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल कर दी गई हैं एंड नाउ वी आर capable of getting the commencement of business stage certificate. रजिस्ट्रार स्क्रूटनाइज करता है सारे डॉक्यूमेंट्स. अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है देन द रजिस्ट्रार विल इशू द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस टू द कंपनी. It is after getting this certificate only that the process of public company having a share capital is completed. कंपनी का शेयर कैपिटल का प्रोसेस कि दे आर गोइंग टू डील विद द शेयर कैपिटल वो कंप्लीट हो जाता है. ये सर्टिफिकेट मिलते ही कंपनी एंटाइटल हो जाती है दैट दे कैन स्टार्ट देयर बिजनेस. ये होता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. इनकॉर्पोरेशन का भी मैंने दिखाया था आपको. सी आई हियर बाय सर्टिफाइड दैट डैश ऑफ न्यू दिल्ली विच वॉज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट इतना ऑन द डे ऑफ इतना 2011 and which has this day filed a statutory declaration in the prescribed form and is compiled with the condition of section 149 is entitled now to commence business. ठीक है, इसमें सब कुछ मेंशन होता है. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एनसीटी ऑफ दिल्ली के सिग्नेचर हो गए, सील लग गई रजिस्ट्रार की. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, I think that's all for today. Tomorrow we will start the memorandum of association and article of association. अब इसको और अच्छे से पढ़ेंगे इसमें, ठीक है. तो by the time you all are supposed to revise it and try to complete your notes as soon as possible because we are going to end up the chapter very soon. Thank you.